Hello everyone, good morning to all, and we are discussing the second chapter of chemistry, that being the structure of atom. And in this chapter I discussed with you, we already discussed some topic here. The topics are the first topic that been from your NCERT. We are discussing first of all your NCERT, and the topic are the subatomic particles and you can say the atomic models. And in this atomic models we discussed like the Thomson models and the Rutherford nuclear model of an atom. Clear? And after the last topic, this is the last topic, that means the representation of an atom. So today we will discuss the Bohr's model. Yeah, you can say that development towards Bohr's model. Clear? First of all, we discuss the development towards Bohr's model. Clear? So first of all, we understand that how we developed a Bohr's model. Clear? यानी कि वो क्या आपके पास, you can say what kind of limitations you have in the Rutherford models which leads towards this another kinds of model called the Bohr's model. Clear? So there are the two changes done in Rutherford atomic models. The changes are as follows, and these changes you can say play very important role towards this model. Clear? So first change is that you can say that the nature of, the first you can say that wave nature of electromagnetic radiation. Clear? So first of all, the change occur in this, the wave nature of electromagnetic radiation. Or second thing is that, second change is done, the particle nature of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. So first of all, we understand here the wave nature of electromagnetic radiation, और समझेंगे कि electromagnetic radiation क्या होता है. ठीक है, वेव नेचर क्या होता है. सो सिंपल थिंग इज दैट वी कैन से दैट आपके पास जो वेव होता है, जो लाइट्स होता है, वो क्या हो गया आपके पास टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. द वन फॉर्म इज कॉल्ड द वेव नेचर एंड सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड द पार्टिकल नेचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड हियर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट मीन द वेव नेचर. एंड विल डिस्कस हियर यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेव्स. वेव्स क्या होती है, वेव के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं आपके पास. ठीक है, क्या क्या फिनोमिनास आपके पास हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी यू कैन से दैट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी इज गिवन बाय द मैक्सवेल. ठीक है, एंड मैक्सवेल इज जनरली you can say discussed here the interaction in between the charged bodies and you can say that electric and magnetic fields. ठीक है, इनके बीच जो इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन को थ्योरी दिया एंड थ्योरी इज गिवन बाय द मैक्सवेल. ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं द वेव नेचर. क्लियर? सो यू कैन से दैट हियर द सिंपल फिनोमेना इज दैट इंटरेक्शन in between charged bodies and electrical and magnetic behavior on macroscopic level. एंड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है, तो इन्होंने सिंपल सा काम किया. इन्होंने क्या किया आपका कि कोई चार्ज बॉडीज दिया. ठीक है, जैसा आपने देखा था इन द लास्ट थ्योरी कॉल्ड रदरफोर्ड थ्योरी, वहां भी एक चार्ज पार्टिकल आपके पास था, और कहीं ना कहीं आपने कहा था चार्ज पार्टिकल कोई इन्फिनिटी से मूवमेंट करते हुए आ रहा है एंड वन डे इट विल फॉल डाउन इनटू इट्स न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस विल बी डिस्ट्रॉय. ठीक है, वही चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एंड चार्ज पार्टिकल एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है, इसी को आप बोलते हैं द वेव नेचर या वेव थ्योरी गिवन बाय द मैक्सवेल. इट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट सपोज यू हैव अ चार्ज पार्टिकल. Suppose you have a charged particle and you can say that this charged particle is moving under an acceleration. ठीक है,
किसी एक्सेलरेशन के साथ ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये मूवमेंट करता है तो यू कैन से दैट इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड दीज फील्ड्स आर फ्लो in the form of wave, and these kind of waves is called electromagnetic waves या electromagnetic radiation. Got it? Got a point? That means I'm saying to you, you have a charge particle and this charge particle is moving under acceleration, and this is produce electrical and magnetic fields, and form in wave nature, या form in waves. So these waves is known electromagnetic waves or electromagnetic radiation. क्लियर? सिंपल थ्योरी आपके पास है. थ्योरी इज दैट कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आपके पास है, सपोज यू हैव ए मूविंग बॉल, ठीक है, एंड दिस रोलिंग बॉल, मूविंग बॉल क्या हो रही है आपका, अंडर मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. सो इट विल गिव यू द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, यानी कि दो के दो फील्ड्स आपको एक साथ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दो की दो फील्ड्स आपको एक साथ मिल रही है, ठीक है, एंड दीज फील्ड्स आर फॉर्म इन वेव. So these kinds of waves is known that electromagnetic waves या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. इन्हीं को आप बोलोगे, किनको बोलोगे, जो आप इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में जा रही है, वेव फॉर्म में जा रही है, ठीक है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. इतनी बात क्लियर होगी. सो ये आपके पास होगा वेव्स, ठीक हो गया. सेकेंड थिंग इज दैट कि वेव्स जनरेट कैसे होती हैं. वी ऑल नो दैट सपोज यू हैव ए वन रोप एंड दिस रोप इज द फिक्स इन a wall and here you can say disturbing this rope. So you can say that this disturbance will give you a simple lines, and this lines is flow in the upward direction, then downward direction, upward direction, and then downward direction. So this upward and downwards is known, this form of flowing upward and downwards is called a wave. Clear? That means suppose you have in this form, so this is called the waves. This called the wave, ठीक है. तो ये कैसा नेचर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप वेव नेचर, ठीक है. तो वेव नेचर में क्या हुआ कि यू आर डिस्टर्बिंग, ठीक है, after this disturbing, this entire is forming a wave. That means this going the upward and this going the downward, upward and the downwards, ठीक है. So see here, you are seeing here these are 2 point, this peak point here, one peak point is here and one peak point is here, ठीक है. From here that means 0 to A, 0 to A, or here is B, clear. So this line, that means the one upward and one downward, it's called a wave, ठीक है. ये कैसा होगा, ये आप एक वेव बोलेंगे, ठीक है. जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, डार्क लाइन देख रहे हैं, इससे आप वेव बोलेंगे, ठीक है. एंड दिस जो अपवर्ड जा रहे हैं, दिस अपवर्ड इज कॉल्ड द क्रस्ट, दिस कॉल्ड द क्रस्ट, एंड दिस कॉल्ड थ्रो, दिस कॉल्ड थ्रो, ठीक है. इसे क्रस्ट बोलेंगे, इसको थ्रो बोलेंगे, यानी कि इन ए वेव द मैक्सिमम अपवर्ड इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड द मैक्सिमम डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड द थ्रो, ठीक है. इसे बोलेंगे आप क्रस्ट एंड दिस इज बोलेंगे थ्रो. एंड ए कंप्लीट वेव, ये कंप्लीट वेव, या इसको आप बोल रहे हैं वन साइकिल, इसको आप क्या बोल सकते हैं, वन साइकिल बोल सकते हैं. तो वन साइकिल का मीन्स क्या होगा, वन साइकिल कंटेन द वन क्रस्ट एंड द वन थ्रो. वन क्रस्ट और वन थ्रो को क्या करेगा, ये आपस में इन्वॉल्व करेगा, तो इसे आप बोलेंगे द वन वेव, या इसे बोलेंगे वन साइकिल, ठीक है.
तो यही जो थ्योरी दिया, यही थ्योरी को आप बोलेंगे द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर क्या देखिए, दिस आर सिंपल थिंग्स। द वेव नेचर देखा, वेव नेचर क्या होता है, जहां आपने बोला द इंटरेक्शन इन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर, बिहेवियर ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये था आपके पास एक थ्योरी जिसका दिया मैक्सवेल ने। ठीक है, आफ्टर दैट आप बोलते हैं कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल, ये कैन से a charge bodies is moving under the acceleration, under some acceleration, so it will produce electrical as well as magnetic fields, and these fields are flow in the form of wave. So these wave is known that electromagnetic waves or electromagnetic radiation. ठीक है, इनको आप बोलेंगे electromagnetic radiation और electromagnetic waves. Clear? So this is the form of one wave, जहां में देखा कि this maximum upward distance is called the crust and the maximum downward distance is called the throw. ठीक है, बात समझ रहे? तो ये आपके पास होगा अप एंड डाउन, एंड ये देगा आपको O to A वन साइकिल देगा या वन वेव आपको देगा। ठीक है, चलो सेकेंड थिंग्स आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, पर इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज है। यहां बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेव्स। ठीक है, या कैरेक्टर्स ऑफ वेव्स। यहां पर फर्स्ट फिनोमिना आप लोग सीखते हैं जिसको आप बोलेंगे द वेवलेंथ, जिसको आप क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं लंबाडा। ठीक है, या लैम्डा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो लंबाडा या लैम्डा का मतलब क्या होगा, वेवलेंथ। इसको आप बोलेंगे डिस्टेंस इन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव थ्रो। ठीक है, इसको आप बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, तो ये होगा आपके पास वेवलेंथ। ठीक है, दैट मीन डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू क्रस्ट या डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू थ्रो। ठीक है, क्या हुआ, डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू क्रस्ट और दीज टू थ्रो, इसको आप बोलेंगे द वेवलेंथ यानी कि द लैम्डा। ठीक है, एंड सेम थिंग यू आर सेइंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो द यूनिट ऑफ दिस वेवलेंथ इज द यूनिट ऑफ द लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट होगी वही क्या होगी, आपकी वेवलेंथ की यूनिट होगी। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं आप लोग, मीटर लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, बट हियर वी हैव द स्मॉल स्मॉल गैप इन बिटवीन दीज क्रस्ट एंड टू सक्सेसिव क्रस्ट। ठीक है, सो हियर विल यूज हियर वन द स्मॉल यूनिट दैट बीन कॉल्ड एंगस्ट्रम। ठीक है, किसका यूज करेंगे आप, एंगस्ट्रम का यूज करेंगे। एंगस्ट्रम वी ऑल नो दैट 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 to power minus 10 meter. It's a very small quantity. It's a very small quantity. It's clear? So wavelength का means होगा the distance in between two successive crests or the distance in between two successive throw is known that wavelength. It's clear? So after that you can see here the second characters is called, second character you can say about the frequency. Clear? So second thing is about the wave is called the frequency. These are some you can say the parameters, yeah, you can say these are some common terms used in the case of any waves. Clear? So second thing you have about the frequency. Frequency is denoted by the mu. Clear? It's called the mu. And second things, what's the frequency? Frequency का means होगा the number of waves are passing through a point in a per second. ठीक है, यानी कि how many waves are passing through a point in a second. इसको बोलते हैं frequency. It's called the frequency. Clear? That means the number of waves here. Number of waves that pass through per second. Clear? So number of waves are passing through
from a particular points in per second. It's called the frequency, that mean the mu. ठीक है, सपोज आपने कहा आप यहां से वेव को जनरेट कर रहे हैं, यू आर जनरेटिंग द वेव फ्रॉम हियर, क्लियर, एंड हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस पॉइंट. सपोज द पॉइंट नेम इज द बी डैश. ठीक है, तो इस बी डैश से कितने वेव्स पर सेकंड निकल रहे हैं, कितने पास कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. दिस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किसी पर सेकंड लेके चल रहे हैं, पर सेकंड में नंबर ऑफ निकलने वाले वेव्स का नंबर होगा द फ्रीक्वेंसी. सो यू कैन सी दैट द यूनिट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड इनवर्स, इज सेकंड इनवर्स, या सिंपली यू कैन से द 1/2. बिकॉज आपने क्या बोला कि नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट्स पर सेकंड. ठीक है, पर सेकंड में कितने वेव्स पास कर रहे हैं किसी सिंगल पॉइंट को, उसे आप बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी. इट्स क्लियर. सो इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. आफ्टर द फ्रीक्वेंसी you can say you have the velocity. The third character is called the velocity. Velocity is represented by small c. Clear. Velocity का means होता है the distance travel by a wave in a second. In a second it's called the velocity. Clear. So you can see that the distance travel by a wave in 1 second. In 1 second it's called, yeah, per second it's called the velocity. So the unit of this velocity is represented by the meter per second. It's called the meter per second. The unit is meter per second. It's clear. Meter per second, that means it's called velocity. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन ए सेकेंड. ठीक है, अब वन वेव क्या होती है, वन वेव आपकी ये होती है. ठीक है, वन वेव, इसे आप बोलेंगे वन वेव. ठीक है, दैट मीन वन क्रस्ट और वन थ्रो आपको मिल जाए जिसमें, उसे आप बोलते हैं वन वेव. ठीक है, वन वेव, या इसको आप सिंपली बोल सकते हैं वन साइकिल. क्लियर. सो यू कैन सी अनदर वे, द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी इज दैट, सो इट्स मीटर पर सेकेंड. Clear. So you can say that in the vacuums, all the radiation, yeah, all the waves are flow with the same speed. ठीक है, जहां वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम आप बोलेंगे कि जहां पे सारी वेव्स या सारी रेडिएशन क्या होती हैं, फ्लो विद द सेम स्पीड, एंड द स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन 3.0 into 10⁸ meter per second. This is the speed, you can say the speed of radiation in the vacuum cases. ठीक है, वैक्यूम में क्या मिलेगा आपको, the speed of light मिल जाएगा, that means 3.0 into 10⁸ meter per second. So this is called the velocity. Understood? It's a velocity. Second thing, the last thing you have called the wave number. Wave number represented by the mu bar. Okay, so wave number is defined that the number of waves in per unit length. Clear? Number of waves in per unit length. Per unit length. Clear? So simple unit of this is called the meter inverse. Meter inverse, but the generally in the common way we will use here the centimeter inverse. Clear? The common unit, yeah, right here the common unit is centimeter inverse, but remember that centimeter inverse is not its SI unit. It's not its SI unit, but commonly it's used centimeter inverse because it's a very small quantity. ठीक है, तो क्या यूज करेंगे आप लोग, सेंटीमीटर इनवर्स यूज करेंगे. ठीक है, या समटाइम इट्स द मीटर इनवर्स, बट इट्स the common unit is centimeter inverse. ठीक है, but remember that it's not its SI unit. Yeah, so there are the four things. The first, the wavelength. Wavelength, that means the distance in between the two adjacent crust, yeah, two adjacent throw. It's called the wavelength, defined by, yeah, represented by the lambda.
ठीक है. Second thing is called the frequency, that means the number of waves that pass through from a single point in per second. ठीक है. So simple unit is centimeter and second inverse, या it's again define that the cycle per second. ठीक है. इसको आप लिख सकते हैं अगेन, ये आपके पास साइकिल पर सेकंड इसको बोल सकते हैं, या द ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट कॉल द हर्ट्ज, ऐसा यूनिट कॉल हर्ट्ज. हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहां पर हो सकता है 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड. ठीक है, चाहे तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर. फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ द नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग थ्रू फ्रॉम ए पॉइंट इन पर सेकेंड, दैट मीन सेंटीमीटर इनवर्स, या हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इज ऑलवेज इक्वल टू साइकिल पर, या 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होगा. ठीक है. 1 साइकिल का मतलब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द 1 साइकिल. ठीक है, जहां पर एक क्रस्ट मिलेगा आपको और एक क्या मिलेगा, थ्रो आपको मिल जाएगा. ठीक है. आफ्टर दिस वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन ए सेकंड. ठीक है, एक सेकंड में कोई वेव कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ठीक है, तो डिस्टेंस वी ऑल नो दैट मीटर इन सेकंड, दैट मीन पर सेकंड. सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी. ठीक है. एंड सेकंड थिंग इज दैट इन द वैक्यूम केसेस ऑल द रेडिएशन आर फ्लो विद द सेम स्पीड, and the speed is 3.0 10 to power 8 meter per second, that means with the speed of light. Clear. After that you have the wave number. Wave number is called the mu bar, that means the number of waves in per unit length, and mostly represented by the meter square, meter inverse, and the common unit is centimeter inverse. It's the common but not SI unit. Clear. So after that you can see the relation in between. So here we'll write a simple relation for all these points. So make a heading here, the relationship in between wavelength, frequency, velocity and the wave number. ठीक है, इन चारों के बीच में आप देख रहे हैं रिलेशनशिप. ठीक है, क्या रिलेशन होता है, सिंपल रिलेशन आपके पास होता है C इक्वल टू म्यू लैम्डा. C इक्वल टू म्यू लैम्डा. C इक्वल टू म्यू लैम्डा इज द फर्स्ट रिलेशन इन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ. क्लियर. एंड हियर यू कैन से दैट द म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, द सेकंड रिलेशनशिप. ठीक है, सेम है, आपने इंटरचेंज कर दिया. एंड वी ऑल नो दैट द 1 बाय लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू बार. म्यू बार मतलब क्या होता है, वेव नंबर. वेव नंबर आपने बोला था द नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर. सो वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा या 1 बाय वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर. ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बार. सो हियर द म्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा C म्यू बार. म्यू इज इक्वल टू C म्यू बार. ठीक है. सो दीज आर द रिलेशनशिप इन बिटवीन द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड द वेव नंबर. ठीक है. सो दीज आर द रिलेशनशिप. अंडरस्टैंड दिस. सो सिंपल रिलेशन आपने देखा, तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन. ठीक है. सो आफ्टर दैट विल सॉल्व हियर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज रिलेशनशिप. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है. सो सिंपल न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू राइट हियर. ए सिंपल न्यूमेरिकल्स आई हैव, and the numerical is that the simple numerical from the NCERT textbook I have, and the numerical is called calculate. Question number first, calculate the first वेव नंबर म्यू बार, पहले ये निकालना है. सेकंड निकालना है आप लोगों ने, सेकंड frequency of yellow radiation or radiation having wavelength
having wavelength 5800 angstrom. 5800 angstrom. ठीक है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर दैट मीन द म्यू बार. सेकंड थिंग निकालना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ 5800 angstrom. ठीक है, सो यू हैव द डायरेक्ट रिलेशन टू कैलकुलेट दिस काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल. ठीक है, सो सॉल्यूशन हियर गिवन इज दैट, गिवन द वेवलेंथ दिया आपको लैम्डा इज इक्वल टू 5800 angstrom. Clear? So first of all, change this angstrom into the meter. So lambda is equal to 5800 into 10 raised to power minus 10 meter. Why? Because we all know that the 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होता है एंगस्ट्रम का. आफ्टर दैट आपको निकालना था वेव नंबर. वेव नंबर रिलेशनशिप अभी देखा आप लोगों ने. द वेव नंबर न्यू बार, यहां लिखना आपको इन ब्रैकेट, वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा. ठीक है, जहां आपने बोला था द वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है. दैट्स व्हाई आई चेंज हियर दिस एंगस्ट्रम इनटू मीटर. ठीक है, सॉरी -10 इज -10. ठीक हो गया. सो हियर you put the value mu bar is equal to 1 by 5800 into 10 raised to power minus 10 मीटर. ठीक है, मीटर ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा, जो आपकी यूनिट भी होता है वेव नंबर का. ठीक है, सो यू विल सॉल्व हियर, सो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस वेव नंबर. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालना आपने म्यू. ठीक है, you have to calculate. Second thing is that frequency म्यू निकालना आप लोगों ने. फ्रीक्वेंसी क्या था आपके पास, आपने देखा था C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. C इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये था रिलेशन. C इक्वल टू म्यू लैम्डा इज अ रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी का. सो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C बाय लैम्डा इज इक्वल टू C by lambda. C is equal to कितना आपके पास है, C we all know that C that means the speed of light कितना होगा, 3.0 into 10 raised to power 8 क्या होता है भैया, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहां पर लिख लें ताकि वो कैंसिल होकर आपको न्यू यूनिट दे देगा फ्रीक्वेंसी का. अपॉन लैम्डा वैल्यू इज दैट 5800 into 10 raised to power minus 10 meter, and we know that the meter is meter, both the meter will cancel out and remain you have the 1 by second. So 1 by second कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एंड यूनिट मिल जाएगी आपको सेकंड इनवर्स. यही यूनिट था आपका फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी आपने बोला था नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग थ्रू फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड. ठीक है, एक सेकंड में कितने वेव्स पास कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को. ठीक है, तो क्या था आपका सेकंड इनवर्स था वहां पर यूनिट. तो यहां भी क्या मिल रही है आपको, सेकंड इनवर्स मिल रही है. दैट मीन यू आर गोइंग टू करेक्ट वे. ठीक है, सो आफ्टर दैट यू विल सॉल्व हियर, सॉल्व इट, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट मीन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर.